کے دشمن ہوئے، جو نبی کے دلاروں کے دشمن ہوئے، وہ یقیناً سبھی دوزخی ہو گئے، وہ یقیناً سبھی دوزخی ہو گئے، زندگی کے جو پل سنتی ہو گئے، فکر منصور ہے معتبر اس لیے، فکر منصور ہے معتبر اس لیے، چند اشعار نعت نبی ہو گئے، زندگی کے جو پل سنتی ہو گئے، قیمتی ہو گئے، جنتی ہو گئے۔ سبحان جو نبی کے دلاروں کے دشمن ہوئے، جو نبی کے دلاروں کے دشمن ہوئے، وہ یقیناً سبھی دوزخی ہو گئے۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر نصیر حسن خان صاحب نے بہترین نعت پیش فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، آج ہم اور آپ ایک ایسے قیمتی لمحات کو اپنے دل و دماغ میں بسانے کے لیے، اپنے وقت کو سنہرے حرفوں میں درج کرانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اشتہارات کے ذریعے سے سوشل میڈیا پر جو اشتہار تھا، اس کے ذریعے آپ کو معلوم ہے کہ آج مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی جو گزشتہ 40-41 سال سے ایجوکیشن کے میدان میں وہ سنجیدہ کردار، وہ معیاری فکر اور کوشش جو قابل ستائش ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ اس کی بے حد ممنون اور مشکور ہے کہ اتنے دنوں میں تیسری نسل کی آبیاری ایجوکیشن کے معاملے میں کر رہی ہے، جس کے فاؤنڈر ڈاکٹر منصور حسن خان صاحب ہیں۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ادبی میدان میں جس طرح سے شعراء کرام کو اور علمی شخصیات کو مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام سینٹ روز پبلک اسکول میں بلا کر ان کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ ان کے کیے ہوئے کاموں کے اظہار تشکر کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قوم اور ملت کے سامنے اس کی ان کی نشر و اشاعت کے لیے جو ان کی فکر اور کوشش ہے، اس کے لیے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ محترم حضرات، ڈاکٹر سعید صاحب جو اسم با مسمہ ہے، نہایت سادہ طبیعت کے حامل ہیں، اور ہمارے لیے بڑی یہ خوشی کی بات ہے کہ میرے عرفاتی بھائی ہیں۔ حسن اتفاق ہے کہ جس سال انہوں نے حق کی سعادت حاصل کیا، اس سال قدم در قدم نہ صحیح تو پیچھے پیچھے ان کے میں بھی حاضر تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ وہاں ہم ان کے پڑوسی ہوا کرتے تھے، تو پڑوسی کا حقوق اور بھائی کا حقوق یہ سب ان پر ہمارے بڑے بھائی ہونے کی وجہ سے ان پر لازم آتا ہے کہ ہماری رہنمائی کریں۔ دوستو، یہ کتاب کا نام کا انتخاب ہی یہ بتاتا ہے کہ صاحب متفرق اوراق، جب یہ لفظ دیکھا تو کسی شاعر نے کچھ اس طرح سے اس بات کو کہا ہے، اپنی زندگی کو بے ترتیب کو ترتیب بتانے کے لیے کہ وقت کے ہاتھوں ایسا میں بکھرا رہا، وقت کے ہاتھوں ایسا میں بکھرا رہا کہ جیسے بچہ کتابیں ادھر ادھر کرتے
تو جب اس دور میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو اس کو ترتیب دے کر کے اجتماعیت کی شکل پیدا کرنا، اور کیوں نہ ہو آخر کہ جن کی زندگی اردو اکیڈمی میں اس طرح سے گزری ہے کہ ورق در ورق، قدم در قدم کتابوں سے ان کی وابستگی رہی ہے. اور بڑی اچھی بات ہے، رب کریم نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں اور اس کا باقاعدہ طور پر ذکر ہے. تو اسی قرآن کے اندر اور آج اس کی تکمیل میں یہ 12ویں کتاب ان کی منظر عام پر آ رہی ہے. اس کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج کی مجلس کے اندر دانشوران قوم میں بالخصوص آج کی بزم کی صدارت فرما رہے جمال نصرت صاحب، جو جمال بھی ہے اور نصرت ہے، اس کے لیے ہم سب کی طرف سے ان کے لیے پذیرائی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ جناب رضی الدین صاحب. قاری رضی الدین صاحب نے بہترین خیالات پیش فرمائے. میں جناب اشرف فردوسی صاحب کا ہمارے بیچ تشریف لے آئے، ان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. محمد علی مدہوش صاحب ہمارے بیچ تشریف فرما ہے، اور رفعت شہدہ صدیقی صاحب کا بھی خیر مقدم ہے. مسرور شاہ جہاں پوری صاحب کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب اشرف فردوسی صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں جو انہوں نے ڈاکٹر سعید احمد سندیلوی صاحب کی 12ویں کتاب متفرق اوراق کے سلسلے میں تیار کیا ہے. جناب اشرف فردوسی صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم اور قبلہ حاضرین کرام، اللہ کا کرم احسان ہے کہ ایک بہت اچھے موقع پر جو کتاب سیرت سنجرہ کا ہے، ہم سارے احباب اس میں شرفا ہیں، موجودین ہیں، صاحب قلم ہیں اور حضرات ہیں، خوشی فرما ہے. بہت خوشی کی بات ہے. ڈاکٹر سعید سندیلوی صاحب کے بارے میں اب تک کا جو میرا مطالعہ ہے، ان کی ذات اور شخصیت پر میں نے مختصر مضمون لکھا ہے. میں لفظ لفظ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں تو زیادہ بہتر ہوگا. عنوان ہے ڈاکٹر سعید احمد سندیلوی حیات و خدمہ. سوانح نگاری ایک بہترین فن ہے. اس میں کسی خاص علم یا کسی حالت سے بحث نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس شخص کی سوانح لکھی جاتی ہے اس کو جس علم اور جس حالت سے سابقہ پڑھا ہے سب کا تذکرہ کیا جاتا ہے. سوانحیات کے پڑھنے سے قوم کی تمدنی، اخلاقی، معاشرتی اور علمی حالات سے واقفیت پیدا ہوتی ہے، اور پڑھنے والوں کے اندر بھی انہی جذبات سے پیدا کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے جن سے وہ شخص متصف تھا جس کی سوانح مطالعہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں. اس قدر مختصر تمہید کے بعد اب ہم ڈاکٹر سعید احمد سندیلوی کی حیات و خدمات کا مختصر احاطہ کرتے ہیں اور جائزہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جائزہ سنجیلا ضلع ہردوئی کا ایک مشہور قصبہ ہے. سنجیلا میں بڑے بڑے نامور شعراء، ادبا اور صاحب قلم پیدا ہوئے. ان کی خدمات کا مختصر احاطہ ڈاکٹر سعید احمد سندیلوی صاحب نے اپنی PhD میں کیا ہے. اب تک آپ کی 5 ضخیم کتابیں سنجیلا پر شائع ہو چکی ہیں اور آج بھی تحقیقی کام جاری ہے. سنجیلا کی تاریخی اور تحقیقی افق پر ڈاکٹر سعید صاحب نے جو کچھ لکھا ہے ایک اقتباس پیش کرتا ہے. سنجیلا ایک قدیم قصبہ ہے جو اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے پچھم میں محض 39 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. اس کا ضلع ہردوئی ہے جو مغرب میں 55 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس طرح سنجیلا لکھنؤ اور ہردوئی کی تقریباً بالکل وسط میں آباد ہے. مغلیہ اور نوابی عہد کے دور میں یہ قصبہ لکھنؤ میں شامل تھا. غدر کے بعد 1859 میں جب انگریزوں نے اودھ کے اضلاع کی تشکیل نو کی تو سنجیلا کو لکھنؤ کی بجائے ضلع ہردوئی کی ایک تحصیل بنا دیا. مغلیہ دور میں دہلی سے لکھنؤ کی امدورہ، پراگ، کالپور، ضلع جالون، قنوج اور فیروز آباد تھی وہ سنجیلا سے ملاوہ اور
बलगराम होकर आती थी। इस वक्त संजीला की चौहद्दी इस तरह है। उत्तर में कस्बा बेनीगंज और जिला सीतापुर, दक्षिण में उन्नाव कानपुर, पूरब में मलिहाबाद कानपुर या लखनऊ और पश्चिम में मिलावा सदर मकाम है। ये संजीला और उसकी तारीख। इसी कस्बा के मोहल्ला मुकीम शाह में 22 अगस्त 1961 ईस्वी को डॉक्टर सईद अहमद संदेली की विलादत वासात हुई। आपके वालिद मालिक का नाम हाफिज सगीर अहमद है और नाना का नाम मोहम्मद अली। आप 5 भाई हैं और एक बहन। इब्तदाई तालीम अपनी मौलवी में हुई। होश संभाला तो मदरसा की बजाय स्कूल की राह ली और संजीला ही में हाई स्कूल तक तालीम पाई। फिर दिल्ली का रुख किया और वहाँ से SSC करने के बाद लखनऊ आ गए और लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA किया। फिर कानपुर यूनिवर्सिटी से MA किया और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से PhD की। तालीम से फरागत के बाद कई जगह मुलाजमत की, ये सब आर्जी थी। एक बार उर्दू अकादमी लखनऊ का एक इश्तहार निकला था जिसमें स्टेनोग्राफर की ज़रूरत थी। आपने भी कोशिश की और आपको मुलाजमत मिली और फिर यहीं से आप 2024 ईस्वी में रिटायर्ड हुए और फिर अकादमी ने मज़ीद 5 साल के लिए आपको एप्लीकेशन दे दिया और ताज़ा में तहरीर आप उर्दू अकादमी मोमकिना के लखनऊ में जेल मुलाजमत हैं और अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्वानी शबाब में आपकी शादी कस्बा ऑरेंज जिला जालौन में 1 नवंबर 1993 को हुई। अल्लाह ताला ने 2 बेटे और 2 बेटियां दी। एक बेटा अमेरिका में तालीम पा रहा है और बरसरे रोजगार भी। आपकी मुस्तकिल रिहाइश लखनऊ के मोहल्ला रजबगंज ठाकुरगंज में है। अपना ज़ाती मकान है जहाँ हम लोग अतराफ में इस वक्त बैठे हुए हैं। डॉक्टर सईद अहमद संदेली तकरीबन 3 दहाइयों से 30 साल 3 दहाइयों से बहुत ही खामोशी के साथ इल्मी वादी कामों में मुनहमिक हैं। मैंने उनकी कुछ ही किताबों का मुताला किया है जिससे उनके अमीर मुताला का पता चलता है। उन्होंने अदब ही नहीं बल्कि मगरिब के मशाहिर अदीबों का उन्हीं की ज़बान अंग्रेज़ी कहें या इसके तराजुम का मुताला किया है और उनकी फ़िक्र को अपनी तहरीरों में समेटा। आप न कोई मुदर्रिस हैं और न ही किसी जामे में प्रोफेसर हैं। आपका मशगला स्टेनोग्राफी रहा है। इसके बावजूद आप 20वीं किताब के मुसन्निफ़ व मौलिफ़ और मुतरजिम हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप बैक वक्त अदीब, शायर, मुतरजिम, अफसाना निगार और कलम सैयाल मजमून निगार हैं। आपकी इल्मी व अदबी खिदमात का दायरा काफ़ी वसी है। उर्दू अदब में फ़न नस्र में कई जहतों पर आपकी खिदमात हैं। पहले हम नस्र का जायज़ा पेश करते हैं, फिर नज़्म का इख्तिसार के साथ जायज़ा पेश करेंगे। आपकी अब तक 13 ज़ख़ीर किताबें मंज़िल-ए-आम पर आ चुकी हैं जिनमें मुबारक का ज़ख़ीरा ज़्यादातर संजीला और रुवाए संजीला से मुंसलिक है। आप मुहिब्बे वतन हैं और अपनी सरज़मीन जहाँ आँखें खोली पले बढ़े आपको उससे काफ़ी लगाव है। यही वजह है कि संजीला की उफ़क़ पर आप जिंदा खोजबीन करते हैं और अलग नाहिए से किताबें मुंतखब करते रहते हैं। आपकी नसरी किताबों में पहली किताब जो हिंदी से उर्दू में मुतरजम है जसविंदर सिंह के अफसाने हैं। ये किताब 1998 में मुनसर शहूद पर आई थी। दूसरी किताब हमवतन नादिर है जो हिंदी से उर्दू में मुतरजम है, 2022 में तबा हुई। इसके बाद तीसरी किताब मकालात सलाम संदेली के नाम से आपने मुरतब की और इसे 2007 ईस्वी में शाये कराया। चौथी किताब मकालात डॉक्टर शकील मोहम्मद सिद्दीकी के नाम से आपने तरतीब दी जिसका साल-ए-शाब 2014। पाँचवीं किताब मुंतशिर औरात के नाम से आपने तरतीब दी जो आपके तबादात नुरानी का मजमूआ है। इस किताब में आपका फ़िक्र झलकता है और तारीख़ आपकी तहरीरों को न चाहकर भी पढ़ता है। ये किताब 2018 में बड़े आवाज़ के साथ शाये हुई और इसे भरपूर पज़ीराई हासिल हुई इसलिए कि ये किताब आपके फ़िक्री और अदबी मैदान का अक्स ज़मीर। फ़न निगारी के बारे में आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि यह खुश्क मौजूद है और इसके अंदर इस कदर खड़ापन महसूस होता है कि लोग इस फ़न की किताबों से मुताला करने से गुरेज करते हैं और बिल्कुल नहीं पढ़ते। लेकिन हमारा ज़ाती ख्याल है कि यह फ़न खुश्क नहीं बल्कि दिलचस्प है। लेकिन मुहक्किकीन ने इसे भारी और खुश्क बना दिया है। बहुत सारे सवानी खाकी या सवानी किताबें आपको ऐसी मिलेंगी जो किसी नाविल से कम नहीं। शर्त यह है कि साहब किताब की सुनविश तहरीर हो तो कारी के जहन पर बार नहीं गुजरता है बल्कि इसका शौक़ तलाशा हो जाता है। सही साहब ने इसी पहलू को सामने रखकर अपनी 6ठी किताब तारीफ की जिसका नाम सवाने हाफिज सगीर अहमद संदेली। ये किताब 2022 ईस्वी में तबा हुई
آپ کی 7ویں کتاب طالب علموں کی سرگرمیوں اور ان کے تحصیل علم سے متعلق ہے کہ انہیں ایام تعلیم کیسے گزارنا چاہیے۔ کتاب کا نام مثالی طالب علم کیسے بنے ہے۔ یہ کتاب ضخامت کے اعتبار سے کم ہے، لیکن اپنی علمیت اور جہاد نکات کی سے بھاری بھرکم ہے۔ 2021 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ ناول نگاری اور ناولوں کی طرح سے ڈاکٹر صاحب کو یکگنا انسیت رہی۔ ایک صاحب ہیں محسن خان، اچھے قلمکار اور افسانے نگار ہیں۔ موصوف نے اردو زبان میں ایک ناول لکھی، اللہ میاں کا کارخانہ۔ یہ ناول آپ کو بہت اچھی لگی تو آپ نے اس کا ہندی ترجمہ کر ڈالا اور پھر یہ کتاب 2021 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کے بارے میں بتا دوں کہ ایک بینک نے اس کتاب کے مصنف کو 21 لاکھ کا ایوارڈ دیا تھا اور مترجم جناب ڈاکٹر سعید احمد صاحب کو 15 لاکھ کا ایوارڈ دیا۔ یہ فن ترجمہ نگاری میں کسی فرد کی یہ اعلیٰ قدر افزائی ہے۔ ترجمہ نگاری کے فن میں اتنا بڑا ایوارڈ اب تک یہ مطالعے کی حد سے کسی کو نہیں ملا ہے۔ یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے جو آپ کو 15 لاکھ روپے کا دیا گیا۔ نئی کتاب جو طبع ہوئی تو وہ ڈاکٹر سعید صاحب کا شعری مجموعہ ہے۔ آپ شاعری بھی کرتے ہیں اور خود کو شاعر۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اسٹیج کی شاعری سے دور رہے، لیکن جب بھی موقع حد لگا آپ اسٹیج پر جلوہ بول ہوئے اور اپنی فکری شاعری کے گلوبوٹے کھلائے ہیں۔ آپ کے شعری مجموعے کا نام رنگ سخن ہے۔ یہ ضخیم کتاب ہے، 2022 میں طبع ہوئی۔ آپ کی 10ویں کتاب کال چکر ہے۔ یہ کتاب اردو زبان میں گردشی ایام کے نام سے طبع ہوئی تھی۔ آپ کو اچھی لگی تو آپ نے اسے ہندی کا جامہ پہنا دیا۔ یہ کتاب 2022 میں طبع ہوئی۔ آپ کی 11ویں کتاب سنگیلا کے مشاہیر شعرا ہے۔ یہ کافی ضخیم اور معلوماتی کتاب ہے۔ سنگیلا کے شعرا اور وقت کا یہ البم ہے جس میں آپ نے تقریباً تمام شعرا کو روشناس کرایا ہے۔ 2023 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ 12ویں کتاب سحر اندیشی حیات اور کلام ہے۔ یہ کتاب بھی ضخیم اور کافی کی درجے ہے۔ سحر صاحب سنگیلا کے مشہور اور سنگو شاعر تھے۔ آپ نے ان کے کلام کو کھود کر اس کتاب میں جمع کیا ہے اور پھر ایک اچھا تعارف بھی کرایا ہے۔ یہ کتاب 2024 میں شائع ہوئی اور سنگیلا کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر گئی۔ ڈاکٹر سعید صاحب کی 13ویں کتاب اس کی آج رسم اجرا ہے۔ اس کا نام متفرد اور آج۔ یہ کتاب 1 ماہ بیشتر چھپ کر آئی ہے اور آج اس کی رسم اجرا ہو رہی ہے۔ یہ کتاب آپ کے تبادلات مضامین اور مقالات کا مجموعہ ہے، جس میں سوانح خاکے، افسانے اور علم و فکری اور ادبی مضامین شامل ہیں۔ اب میں ڈاکٹر صاحب کی منظوم ادبیات کا مختصر جائزہ ان کے شعری مجموعہ رنگ سخن کے تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بس تھوڑا ہی وقت دوں گا۔ یہ سچ ہے کہ ڈاکٹر سعید صاحب بڑی خاموشی کے ساتھ اردو زبان کی جیسے جانا کو سنوار رہے ہیں اور اپنی فکری نقوش سے دامن اردو کو دن دگنی رات چوگنی عطا کر رہے ہیں۔ اور ایک حلقہ جہاں تک آپ کی رسائی ہے آپ کا قدرداں اور مددار رہا ہے۔ آپ نے شاعری کب اور کس پس منظر میں شروع کی، اس سے قطع نظر آپ کے کلام اور آؤٹ فکر کی چند جھلکیاں پیش کرتا ہوں۔ آپ کا شعر ہے، سبھی سے رشتے یہاں استوار رکھتے ہیں، سبھی سے رشتے یہاں استوار رکھتے ہیں، سبھی کے واسطے ہم دل میں پیار رکھتے ہیں۔ بہت اچھا شعر ہے۔ سبھی سے رشتے یہاں استوار رکھتے ہیں، سبھی کے واسطے ہم دل میں پیار رکھتے ہیں۔ دوسرا شعر، جو چاہتے ہو کہ منزل، جو چاہتے ہو کہ مقبول عام ہو جاؤ، جو چاہتے ہو کہ مقبول عام ہو جاؤ، تو نرم لہجے میں سب سے کلام کرنا ہے۔ جو چاہتے ہو کہ مقبول عام ہو جاؤ تو نرم لہجے میں سب سے کلام کرنا ہے۔ ایک تیسرا شعر، ہم دوست بناتے ہیں مگر شرط ہے اخلاص، ہم دوست بناتے ہیں مگر شرط ہے اخلاص، ہم دوست بناتے ہیں مگر شرط ہے اخلاص، ہم ان سے تعلق میں سیاست نہیں کرتے۔ بہت بڑی بات ہے، لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں کام کرنے کے بعد۔ اس میں آپ کی اس شعر میں آپ کی انسانیت نوازی، ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی اور انسان دوستی کا ایک عمدہ نظریہ پیش کیا ہے اور اپنا تعارف بھی کرایا ہے کہ وہ کس انداز کے فرد بشر ہیں۔ نعتیہ شاعری کے 2 شعر دیکھیے، مدح رسول سے شہزاد دیار حبیب میں حاضری اور اپنی تمنا دلی کے تناظر میں کہتے ہیں، میں
जस्तुजू में रहा जिसकी एक मुद्दत से, मैं जस्तुजू में रहा जिसकी एक मुद्दत से, सुकून मिला उसे दर पे हाजिरी में। आपको हज का शर्फ हासिल होता है, माशाल्लाह आप हज कराए हैं। मेरा अंदाज़ा है कि गालिब ये शेर इशारा है। अगला शेर देखिए, सईद उसकी सना कोई मुकम्मल कर नहीं सकता, सईद उसकी सना कोई मुकम्मल कर नहीं सकता, नहीं इस बात की औसाफ की मुशात का अंदाज़ा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताबिक है। एक शेर आप जो नाज़िया कलाम से माखूज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ का जो सफ़र हुआ था उसके दिल में है, संग बारी पे भी ताइफ में हुआ ये साबित, अपने दुश्मन को भी सरकार दुआ देते हैं। अच्छा शेर है। अब गज़ल के एक शेर, गज़ल को उर्दू ज़बान में एक ख़ास मकाम है और जिसम से दामन उर्दू निखरी और बिखरी है। गज़ल गोई सख्त मुश्किल काम है। सईद साहब अपनी गज़ल सुनने और सुनाने से मुताल्लिक़ अपना नज़रिया पेश करते हैं। और देखिएगा, सईद साहब अपनी गज़ल सुनने और सुनाने से मुताल्लिक़ अपना नज़रिया पेश करते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने से बेहतर है कि खामोश रहा जाए। जो गज़ल का कदरदान और सुखन फहम न हो उसे शेर क़तन न सुनाया जाए। उसी दिन में एक शेर कहते हैं, जो सुखन फहम हो इदरा की गज़ल रखता हो, जो सुखन फहम हो इदरा की गज़ल रखता हो, ऐसा ही उसको गज़ल अपनी सुनाई जाए। जो सुखन फहम हो, जो सुखन फहम हो इदरा की गज़ल रखता हो, ऐसा ही उसको गज़ल अपनी सुनाई जाए। बहुत अच्छा शेर है। इस शेर के लिए मैं भी उनको दाद देता हूँ, तभी मैंने इंतखाब किया है इस मजमून में। एक दूसरा शेर देखिए, दूसरों की दिलशक्नी से मुतालिक है कि लोग किस तरह तकलीफ भूल जाते हैं। जब से देखा है सखावत में रियाकारी का रंग, जब से देखा है सखावत में रियाकारी का रंग, मेरे दिल से जज्बे जूदो सखा जाता रहा। कहते हैं मोको चूल्हा में झोंको वाली मिसाल है कि जब आपने करके कहीं पर गिनात या गई की तौहीन कर दी, बेइज्जती कर दी, तो क्या फ़ायदा? इससे चाहे बस आपका जो मैंने मुताला किया था डॉक्टर सईद साहब का तारुफनामा आपके सामने मैंने पढ़ दिया और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर सईद साहब को। मैं बहुत कम दिनों से आपको जानता हूँ, लेकिन आपकी 4-5 किताब मेरे पास है। 2 किताब पर मैंने तबसरा किया था जो छप चुका है तबसरा। एक तीसरी किताब भी उन्होंने दी कि अशरफ भाई आप तबसरा कर लीजिएगा। तब से मैंने बहुत करीब से देखा, पढ़ा, तब पता चला कि खामोश तरीके से जो लोग लिखते पढ़ते लोग हैं उनमें एक आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लिखते पढ़ते रहते हैं। मैं आपको इस इल्मी काबिज के लिए बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने तो फिर शुरू में शुक्रिया अदा ही किया जनाब संजय मिश्रा साहब दरमियान है, मैं हबाब में जानता नहीं हूँ। मैं आपको तमाम बात आप सामीन का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, मैं आपके सामने हाजिर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। जनाब अशरफ फिरदौसी साहब, ना काबू से दोस्ती ना काबू से बैर, सही साहब सभी से रिश्ते यहाँ उस्तवार रखते हैं। जो सुखन फहम हो, सही साहब फरमा रहे हैं, जो सुखन फहम हो इदरा के गज़ल रखता हो, कंडीशनल है, जो सुखन फहम हो इदरा के गज़ल रखता हो, ऐसे ही उसको गज़ल अपनी सुनानी चाहिए, सुनाई जाए। ऐ सईद उसको गज़ल अपनी सुनाई जाए। मौत से बचने की ये तरकीब है। सही सामने शायद ये शेर जहन नशीन कर लिया होगा। मौत से जमा साहब, मौत से बचने की ये तरकीब है, दूसरों के जहन में जिंदा रहो। जनाब अनवर जलालपुरी साहब फरमाते हैं। तो गालिबन इस बात को ये ध्यान में रखा है कि 12 किताबें आ गई हैं। उम्मीद है कि 24-25 और किताबें इंशाल्लाह आएंगी। मैं अब इस किताब के सिलसिले में जो रखना है उसके लिए डॉक्टर मंसूर हसन खान से गुजारिश करता हूँ कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आज इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे प्रोफेसर जमाल नुसरत साहब की गुलपोशी के लिए मैं
جناب ضیاء تقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. جناب ضیاء تقوی صاحب گلگوشی فرمائیں. جمال نصرت صاحب کی، ڈاکٹر سعید سندیلوی صاحب، دیگر کا ہی بڑا نام ہے. صدر محترم جناب جمال نصرت صاحب. عاصم ملی آبادی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. اور اسی سنڈیلا کی سرزمین کے شاعر، متفرق اور مصنف جناب سعید سندیلوی صاحب کا گلگوشی کر کے خیر مقدم کرے. ادھر دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں سامنے. محمد علی بلوچ صاحب کا شکریہ، آپ نے اس لمحے کو قید کر لیا. جناب اب میں جناب محمد بخش قادری صاحب کو گلگوشی کے لیے، سنجے مشر شوق صاحب کا کی گلگوشی جناب ڈاکٹر سعید احمد سندیلوی صاحب کر رہے ہیں. زوردار تعلیم سے ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے. فوٹو سنجے مشر شوق کی گلگوشی سعید صاحب نے کی، کیمرے میں قید کر لیا. جناب محمد بخش قادری صاحب انجینئر صاحب جو AMU اور وائس کی میگزین کے کئی سال ایڈیٹر رہے ہیں. بہترین میگزین آپ تیار کرتے تھے، بس میں وفا. اب چونکہ دولہ سعید صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی کتاب کی رسم رونمائی ہے. رفع شہدہ صدیقی صاحب سعید سندیلوی صاحب کو سامنے دیکھیے، سامنے دیکھیے، سامنے دیکھیے، سامنے دیکھیے سر. ادھر ادھر دیکھیے جی، ادھر دیکھیے. ایک نہیں دو دو ماترائیں نر سے بھاری ناری ہے. میں نصرت چشتی صاحبہ سے بھی گزارش کروں گا کہ جب یہ عورتوں کی یہاں کے پر خواتین تو نہیں خاتون کی نمائندگی کر رہی ہیں تو ایک گل آ کر آپ پیش فرما دیں. صحیح صاحب پیش کروا دیے، پیش کر دیے. بہت مبارک. کوشش فرمائیں سعید صاحب کی، ڈاکٹر سعید احمد سندیلوی صاحب کی. رضی الدین صاحب کی گلگوشی کے لیے منصور حسن خان صاحب پڑھتے ہیں. سندیل صاحب آپ دونوں. آدم سدولوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں. مقالہ نگار اشرف فردوسی صاحب آپ آئیں. اب آپ سدولی سے تشریف لائے ہیں اور آپ سامنے دیکھیے، سامنے. مقالہ پیش فرمایا ہے. آج کے دولہ جناب ڈاکٹر سعید سندیلوی صاحب کا گلگوشی یہ آپ کہنے رہیے گا. آگے سے آئیے ایسا بھائی علی جناب رفعت شہدہ صدیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب سنجے مشر شوق صاحب کو چونکہ کہیں جانا ہے. عام طور پر لوگ شاعری بہت آسانی سے کر لیتے ہیں، نثر کی طرف کم لوگ رجوع ہو پاتے ہیں. اور اچھی نثر لکھنے کے لیے آپ کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، مشاہدہ بھی کام آتا ہے، اور الفاظ کا شکو اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کے مضمون کے حسن کو تبادلہ کرتا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ سعید سندیلوی صاحب کہ ابھی کافی کچھ بتایا گیا. آپ نے بتایا کہ 13 کتابیں لکھی ہیں اور 9 کتابیں قریب آنے کو ہیں، یعنی تعداد بہت ہے. لیکن ہونا یہ بھی چاہیے کہ اگر کوئی تخلیق کار ہے یا کوئی شاعر ہے، نثر نگار ہے، تو اس کی تخلیق کا ذکر اس کی موجود نہ رہنے پر بھی ہوتا رہے، تبھی وہ کامیاب ہے، چاہے وہ شاعری ہو چاہے نثر. مضمون کے اعتبار سے ان کی ایک 2018 میں بھی کتاب آئی تھی، منتشر اوراق. منتشر اوراق
के बाद अब ये मुतफर्रिक और इतनी अलग अलग मज़ामीन है, इसमें 37 मजमून है जिन पर तबादलाई की है आपने, एक आध तबसरा भी है, हालांकि इसको मजमून से अलग रखना चाहिए, तबसरा जो है मजमून में शुमार नहीं किया जाता। लेकिन बहरहाल अब चीज़ें बदलने का दौर चल रहा है, तग़य्युरात ज़माना जो है वो यहाँ पहुँच गया है कि लोग उर्दू में नस्ल लिखने से कासिर हैं। अच्छा, सईद साहब बहुत संजीदा रहते हैं, बहुत मुश्किल से मुस्कुराते हैं और इनकी तहरीर भी संजीदा रहती है। तहरीर में भी मुस्कुराहट बहुत कम देखने को मिलती है, घुमावदार तहरीर नहीं है इनकी, जैसे ये सादा है वैसी तहरीर है इनकी। पढ़े लिखे हैं, PhD किए हुए हैं, संस्कृत का भी डिप्लोमा है, आयुर्वेदिक रत्न का, और अरबिक में भी एक डिप्लोमा किया हुआ है। यानी तमाम जो है हम सब इसमें कहता है ना, उसका जिक्र जरूरी है। इसमें सबसे पहले इन्होंने इस किताब में सवाने के तहत अपने वालिद साहब के सवाने लिखे। ये एक बड़ा मुश्किल तरीन काम है। अपने पिता के बारे में लिखते समय तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इन्होंने बहुत आसानी से मुख्तलिफ अब्वाब में बांट कर लिखा है, सवाने लिखी है, कब पैदा हुए, कहाँ पढ़े लिखे, किनके हाथों बैत हुए, और खिलाफत का सिलसिला इन तक भी। हालांकि इन्होंने इस पर ज़्यादा अमल नहीं किया, अपने लोगों को बनाया नहीं हुई, लेकिन ये है कि एक बुजुर्ग इनके घराने के शाह फर्रुख हसन साहब से बैत है, इनके फादर काजी मुहीउद्दीन साहब से बैत थे। अच्छा, एक काम ये भी होता है कि इनकी किताब में एक ये भी खास बात देखने को मिली कि इन्होंने कुछ शोरा की दरियाफ्त भी की है, यानी गुमशुदा थे वो। आज तक का दौर तो ये है कि आज आंख बंद हुई, दूसरे दिन कोई नाम लेवा नहीं, अगर उनके बच्चों में नहीं है लिखने वाला। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को यहाँ देखा है कि वो मरे और उनकी किताबें कूड़े के भाव से खरीदी, और उनकी जो तख्लीकात थी उनसे भी लोग वाकिफ नहीं थे, तो वो भी खरीदी गई, कहीं ना कहीं खरीदी गई। अब देखिए वो कब माल निकले हो। नफीस अहमद सिद्दीकी, नफीस लखनवी एक गुमनाम शायर रहे, और शहदा बदायूनी। शहदा बदायूनी का तो कोई शेर नहीं मौजूद है, लेकिन नफीस साहब की शायरी मौजूद है, गज़ल भी है, नज़्म भी है। बड़ी मतलब परस्ती रह गई है, यहाँ जीना है मुश्किल आदमी का, ये नफीस साहब का शेर। उनके मामू सिफत लखनवी थे, उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा शेर कहा, किताबे ज़ीस्त का पलटा हुआ वरक़ हूँ मैं, तुम्हारे वास्ते अहले जहाँ सबक हूँ। तो इस तरह से उन्होंने एक नेपाल के शायर में फरूक अहमद आरिफ, उन्होंने अपनी नज़मों में मसावात और प्रेम का दर्स दिया है। तसव्वुफ़ उनका ख़ास इलाका है। मसावात का दर्स अपनी नमाजें अमीर गदा को बहम देते हैं, ये शेर। अब उसके अलावा कुछ इन्होंने मज़ामीन मिल्लत के ज़वाल के असबाब तलाश और उनका हल ये भी लिखा है, और नाक़दरी का नतीजा शारिक रब्बानी साहब का तारुफ, उनकी शायरी, ये सब पेश की है। यानी कुल मिला के तमाम चीज़ों से रंगी हुई शायरी है इनकी। इसमें ये नहीं कि एक तरफ ये चल रही है, हालांकि इसमें अफसाने भी हैं, 5 अफसाने भी इसमें शामिल किए हैं, और मुख्तसर अफसाने हैं, लंबे नहीं हैं। शारिक रब्बानी साहब का तारुफ है, शायरी है। एक शेर उनका भी कि रब ने हर सांस में खैरियत डाल दी, और क्या चाहिए ज़िंदगी के लिए। मीर की शायरी से भी बहुत मुतासिर है सईद साहब। मीर की शायरी में दुनिया से किनारा कशी और गोशा नशीनी के रुझानात पर भी इन्होंने कलम उठाई है, जिस पर कम लोगों ने लिखा है। मोहम्मद उस्मान आज़म, मोहम्मद फारूक हसन, एहसन आज़मी,
एहसान आज़मी पर भी आपने कलम उठाया। एहसान आज़मी एक अच्छे और सच्चे शायर थे, हमारे बीच नहीं है। उन्होंने अपने उस्ताद के 40,000 अशार का एक जगह मुकम्मल किए, ये बहुत बड़ी बात है। और वजाहत साहब कुछ यादें कुछ बातें, सागर मियाँ, इस तरह से बहुत सी इन्होंने शख्सियात को अपने यहाँ जगह दी है। जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हम साया काहे को सुनता रहेगा। मीर साहब पर भी कलम उठाया है। बहुत से लोग हैं, बे औलाद, अलबेला, ट्रांसपोर्टर, धड़कन, ये सब आपकी अफसाने हैं आपके। अच्छी बात यह है कि सईद साहब की नस्ल जो है वो सीधा बयानिया नस्ल है, इसमें कोई घुमाव नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं अब आज का आदमी बयान सुनने से कासिर है, बयान ज़्यादा देर नहीं सुन पाता। तो मेरा सुझाव ये है कि इनको अपनी यहाँ थोड़ी वक्त के एतबार से तब्दीली करना चाहिए नस्ल में। क्योंकि नस्ल क्यों हम पढ़ें आज के दौर में। एक साहब से खुशबीर सिंह शाह, उनकी किताब आई नई शायरी की, तो उन्होंने एक पत्रकार से कहा कि आप हमारी किताब पढ़िए। तो उसने कहा आपकी किताब क्यों पढ़ें? पहले कहा जब शायरी पढ़ना मेरे वालिद से लेकर 2000 लोग हैं, क्यों हम पढ़ें आपकी शायरी? तो सवाल ये कि जब तक आपकी शायरी में कुछ ऐसा होगा नहीं, या आपकी नस्ल में कुछ ऐसा होगा नहीं जो पढ़ने वाले कारी को अपनी तरफ खींचे, ये हमको और आपको सबको इस हुनर को अपने यहाँ पैदा करने की कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कलाम पढ़ लीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय मिश्रा शौक साहब, बेहतरीन ख्यालात आपने पेश फरमाया डॉक्टर सईद संजीवी साहब के सिलसिले में। अब मैं शेरी नशिस्त को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जनाब जो बड़े अच्छे प्रोग्राम वगैरह कराते रहते हैं, एक बड़े अच्छे वकील हैं, सोशल वर्कर हैं और समाज के लिए आपकी बड़ी खिदमत हैं, मेरी मुराद है मोहम्मद अली साहब जो मदहोश लक़ब रखते हैं। हालांकि नाम मदहोश है मगर बहुत होशमंद हैं, समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं और लोगों को बहुत सारी चीज़ों से जिसकी नावाकियत है लोगों को से ये रोशनास कराते रहते हैं। मोहम्मद अली मदहोश साहब माइक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुशायरे में सब जो है हम उनका इस्तेमाल करता हूँ। और आजकल एक ट्रेंड चली है कि हमारे देश में एक राजनीति हो रही है कि हिंदू मुसलमान को अलग करें। और ये राजनीति बहुत इस स्तर पर पहुँच गई है कि आज पूरा समाज इसकी गिरफ्त में आ चुका है। तो एक छोटी सी नस्ल आज जो हमको जुदा कर रहे हैं उनके लिए आज भी हमको जुदा कर रहे हैं दूसरे से। और इसमें कुछ सवालात भी हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने दिल की बात आपको पहुँचा पाऊँ नज़म के जरिए से। उस इंसानियत का क्या करोगे जो बिखरी है हिंदू मुस्लिम की मुस्कानों में? उस इंसानियत का क्या करोगे जो बिखरी है हिंदू मुस्लिम की मुस्कानों में? दबी पड़ी हैं दोस्ती की मिसालें शमशान कब्रिस्तानों में। भारत के झंडे तले सद्भाव पनपा, भारत के झंडे तले सद्भाव पनपा खेत खलिहानों में। गंगा के पानी से उपजी गंगा जमुनी तहजीब की खेती दिल के बागानों में। मैं तेजी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है। आखिर क्या करोगे हिंदू के मरने पे मुस्लिम मार होती है? आखिर क्या करोगे हिंदू के मरने पर मुस्लिम मार होती है? कफन मुस्लिम को ना मिले तो चादर बनकर चमकी होती है। भारत सबका है नहीं एक की बकौती है, जो बहे एक दूसरे के गम में वे आंसू नहीं सच्चा मोती है। आखिर क्या करोगे
عید دیوالی سب گلے ملتے ہیں، تیل نہ ہو تو پانی سے دیے جاتے ہیں۔ اہنسا اور نیتکتا سکھائی جاتی ہے تسبیح کے دانوں میں، اہنسا اور نیتکتا سکھائی جاتی ہے تسبیح کے دانوں میں، دان کلیان کی تجوری بھرتی ہے مندر کے خزانوں میں۔ آخر کیا کرو گے؟ بھارت کے کرانتی کاریوں کے ترانے گھر دوار گائے جاتے ہیں، آج بھی گاندھی، آزاد، بھگت، بسمل کو خوش چڑھائے جاتے ہیں۔ آخر کیا پایا ہے تم نے نفرت نسل پرستی کے نعروں سے؟ ڈرا نہیں سکتے ہو لوگ من کو بارود بھرے ہتھیاروں سے۔ آج بھی بھارت بدھ گاندھی کی طرح انہی کی راہ پہ چلتا ہے، شری رام کرشن نانک کا نام سنتے ہی من جائے کرتا ہے۔ آخر کیا کرو گے؟ ماں کی لوری ست میں جیسے سکھاتی ہے، آخر کیا کرو گے؟ ماں وطن کی وفاداری کا نمک دودھ میں پلاتی ہے۔ آخر کیا کرو گے؟ صرف ٹکرا کر دیواروں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، دھرم کے نام پہ نرسنہاروں سے۔ کیا پایا جگت میں تیر تلواروں سے؟ چلے ہو شکشت ہونے راجنیتی کے ان پڑھ گنواروں سے۔ سیکھا ہے دیش بھکتی، سیکھنا ہے دیش بھکتی، من لگاؤ بھارت کی آزادی کے امر جوانوں میں۔ آج بھی ہمیں پریرنا ملتی ہے بھارت میں ہوئے بلیدانوں میں۔ یہ خوبصورت لفظ اور ایک اجازت ہے کہ میں ایک چھوٹا سا گیت جو ہے وہ اگر اجازت کو یہ میں نے ایک ناٹک کرایا تھا کشمیر، بہت اچھا میرا گیا تھا، میری ہی اس کے اندر ڈائریکشن میں ہوا تھا لکھنؤ مہوتسو میں، اور اس میں یہ گیت بہت لوگوں نے پسند کیا۔ چلتا چلا چل مگر سر اٹھا کر چل، چلتا چلا چل مگر سر اٹھا کر چل، چلتی ہوئی ہر سانس پر جے ہند لکھ دے، دھڑکے جو دھڑکن یہاں جے بھارت لکھ دے، چل وجے پتھ پر چل، ترنگا اٹھا کر چل، چلتا چلا چل مگر سر اٹھا کر چل، چلنا بہت دور ہے، منزل ہے کٹھن، کانٹوں بھری راہ پر تو مسکرا کر چل، کانٹوں بھری راہ پر تو مسکرا کر چل۔ اور یہ خاص کر ہمارے دیش کے سینکوں کے لیے۔ چلنا ہے انگاروں پر دور ستاروں تک، وعدہ مگر وطن سے تو نبھا کر چل، چل دوریاں مٹا دیں، یہ میں ہندو مسلمان بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، چل دوریاں مٹا دیں، مٹا دیں فاصلے اپنے بھائیوں کو گلے لگا کر چل، اپنے بھائیوں کو گلے لگا کر چل، رک جانا مگر اس لیے اے وطن کے سپاہی، رک جانا مگر اس لیے اے وطن کے سپاہی، دیش سے ظلم اور نفرت مٹا کر چل، دیش سے ظلم اور نفرت مٹا کر چل۔ یہ آخری بند، سوکھ نہ جائے چمن، برباد نہ ہو وطن، سوکھ نہ
اپنے لہو کا پانی گلشن کو پلا کر چل، اپنے لہو کا پانی گلشن کو پلا کر چل. جے ہند، جے بھارت. اپنے لہو کا پانی گلشن پلا کے چلوا، تاثرات کے خیالات تھے. زمیں کی فکر کر ناداں، زمیں کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے. زمیں کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں. میں نہایت ادب احترام کے ساتھ نصرت چشتی صاحبہ سے ملتمس ہو کے وہاں اپنا کلام بھی کروں گا. نصرت چشتی صاحبہ، محترمہ نصرت چشتی صاحبہ. میرا نام شاہ چشتی ہے اور گلوبل فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی چیئرپرسن ہوں. اور ابھی ہم نے ایک پروگرام کرا تھا 11 مئی کو، جو ابھی سے ہی ان کو ملا تھا، اور انشاءاللہ ہم اسے کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگوں سے ہم تاریخ بتا دیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ضرور کو ہمیں بتایا ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنا نمبر لے لیں گے سب کا، تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور تشریف لائیے گا. میری کسی ٹرسٹ ہے ہم ضرور پہنچاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. افسر صاحب سے کام کیا، آپ نے کام لیا ہے اور پروگرام بھی کرنے جا رہی ہے. نیئر فیوچر آپ سبھی لوگوں کو مدعو کر رہی ہیں. میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزاح کی طرف آگے بڑھنے کے لیے میں جناب مسرور شاہجہاں پوری صاحب سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اس جو یہاں پہ ٹرینکولیٹی ہے اس کو دور کریں اپنی مزاح سے. جناب مسرور شاہجہاں پوری صاحب. مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کی 12 کتابیں آ چکی ہیں. ابھی میں نے اس کتاب کا نام دیکھا، فرضی افراق، تو میں اسے منتشر افراق پڑھ رہا ہوں. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے لکھی ہے. تو یہ ایسے کمال کے آدمی ہیں کہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں اس کو تفریق ہو یا منتشر ہو سب کو مجلد کرتے ہیں. اور اب پہلے تو میں سمجھا شاید سب کو منتشر افراد بانٹے جائیں گے، لیکن اب کتاب کو دیکھ کر لگتا ہے شاید میرا بھی نمبر آ جائے. بہرحال سامعین کرام السلام علیکم. اردو کے تعلق سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکل بھی جاتی ہیں. مجھے کہا گیا کہ اپنا کچھ مزاحیہ کلام سنائیے. تو آج کے زمانے میں کسی کے اداس چہرے پر مسکراہٹ کی لکیر بنا دینا تو آسان ہے. گدگدانے سے آدمی نہیں ہنستا ہے. وہ کسی کی تحریر یا اس کی شاعری کیا اسے ہنسائے گی. چچرا نکالے میں کسی کو کیا خبر جو مار کا سر کر کے نکلا ہوں. کسی کو کیا خبر جو مار کا سر کر کے نکلا ہوں. دیکھیے دوسروں پہ طنز کرنا بہت آسان ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ اپنے اوپر بات نہیں ہے. آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیے. کسی کو کیا خبر جو مار کا سر کر کے نکلا ہوں.
सवेरे आज मैं 11 बजे बिस्तर से निकला। किसी को क्या खबर जो मार का सर करके निकला हूँ। कितना बड़ा मार। सवेरे आज मैं 11 बजे बिस्तर से निकला हूँ और बराए नाट का बेगम ने लातों से नवाजा है। अभी मशहूर मैं लेग पीस खाकर घर से निकला। अभी मशहूर मैं लेग पीस खाकर घर से निकला। वो तवज्जो से सुने अब हजरत मशहूर को, वो तवज्जो से सुने अब हजरत मशहूर को, इख्तिलाजे क़ल्ब के जो दायमी पेशेंट हैं। वो तवज्जो से सुने अब हजरत मशहूर को, इख्तिलाजे क़ल्ब के जो दायमी पेशेंट हैं। दिल भी खिल जाएगा उनका, नाक भी खुल जाएगी, क्योंकि सब हटार मेरे एंटी ऑक्सीडेंट। क्या बात है, अब एक चीज़ यहाँ देखने में मिलती है, अक्सर मिलती है। पहले कुछ दिल पे बोझ होता था, अब नहीं होता। तो ये ख्वाह मोटे महीन दे मौला, ख्वाह मोटे महीन दे मौला, ख्वाह गिनती के 3 दे मौला। ख्वाह मोटे महीन दे मौला, ख्वाह गिनती के 3 दे मौला। कांग्रेसी हो या मुजन संगी, बस हमें सामईन दे मौला। वो हमें नहीं मिलते हैं। बदल भी सुना दूं, मतलब समाज फरमाइए कि चूने के दाम 5 से आगे निकल गए। चूने के दाम 5 से आगे निकल गए। ये सुन के हम दुकान से आगे निकल गए। चूने के दाम 5 से आगे निकल गए। ये सुन के हम दुकान से आगे निकल गए। और फैशन परस्त माँ को जो देखा तो वो भी खुद, फैशन परस्त माँ को जो देखा तो वो भी खुद कटपीस होकर थान से आगे निकल। फैशन परस्त माँ को जो देखा तो वो भी खुद कटपीस होकर थान से आगे निकल गए। और वो मुख्तसर लिबास में निकले जो घर से कल, वो मुख्तसर लिबास में निकले जो घर से कल, खतरे के हर निशान से आगे। वो मुख्तसर लिबास में निकले जो घर से कल, खतरे के हर निशान से आगे। और जो कुछ वो पहनते थे, चलो पहनते थे। अच्छा इशारा है। अरे आप अभी से बहुत अच्छा। जो कुछ वो पहनते थे, पहनते तो थे, चलो पहनते तो थे। एक दिन तो वो गुमान से हटा। जो कुछ वो पहनते थे चलो पहनते तो थे। एक दिन वो गुमान से आगे निकल गए। और आशिक तो आज भी है वहीं पर जहाँ से कल, आशिक तो आज भी है वहीं पर जहाँ से कल माशूक सब प्लान से आगे। बहुत अच्छे भाई। फरमाइए कि जोशे जुनून में बार ऐसा हुआ कि हम, जोशे जुनून में बार ऐसा हुआ कि हम महबूब के मकान से कांग्रेसी हो या कि जनसंघी, ऐ खुदा मुझको सामीन दे मौला। एक दिन तो वो गुमान से आगे निकल गए। बेहतरीन मिजाहिया कलाम आपने पेश फरमाया मसरूर शाहजहांपुरी साहब ने। चूँकि हैदर अली साहब की कुछ तबीयत वो है नासाज है, तो जल्दी आना चाहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए माइक में।
आली जनाब हैदर अलवी साहब। ये कहते हैं नाम और नंबर लिख दी। 4 मिसरों के बाद कि चढ़ते दरिया उतर गए सारे। क्या होता भाई? चढ़ते दरिया उतर गए सारे, खाक जैसे बिखर गए सारे, खाक जैसे बिखर गए सारे, और मुझको जी भर के कोसने वाले उनके चेहरे उतर गए कोसने वाले, मुझको जी भर के कोसने वाले क्या कहने उनके चेहरे उतर गए सारे। और एक बदल की कुछ शेर, बदला यूं हुआ है कि चेहरा नहीं बदला है, कभी सर नहीं बदला। चेहरा नहीं बदला है, कभी सर नहीं बदला। हमने तो कभी दीस का महवर नहीं बदला, हमने तो कभी दीस का महवर नहीं बदला। अल्लाह की कुदरत पे हमें पूरा यकीन है, अल्लाह की कुदरत पे हमें पूरा यकीन है। यूं हमने नगीनों के मुकद्दर नहीं बदला। अल्लाह की कुदरत पे हमें पूरा यकीन है, यूं हमने नगीनों से मुकद्दर नहीं बदला। और कुछ लोग बदल लेते हैं पहचान भी अपनी, कुछ लोग बदल लेते हैं पहचान भी अपनी। हमने तो कभी फोन का नंबर नहीं बदला। फिर पढ़िएगा आप क्या कहते हैं। कुछ लोग बदल लेते हैं पहचान भी अपनी, हमने तो कभी फोन का नंबर नहीं बदला। एक छोटा सा घर है वही महल है मेरा, एक छोटा सा घर है वही महल है मेरा। ताउन रहे उसमें कभी घर नहीं बदला। चेहरे के खदोखाल जमाने ने मिटाए, चेहरे के खदोखाल जमाने ने मिटाए, और हमने भी खुददारी का पैकर नहीं बदला, और हमने भी खुददारी का पैकर नहीं बदला। ये ठीक है शोहरत से बहुत दूर रहे हम, ये ठीक है शोहरत से बहुत दूर रहे हम। सब लोग ये कहते हैं कि हैदर नहीं बदला। कुछ लोग बदल लेते हैं पहचान भी अपनी, हमने तो कभी फोन का नंबर। कुछ लोग बदल लेते हैं पहचान भी अपनी, हमने तो कभी फोन का नंबर नहीं बदला। वाह सुभान अल्लाह हैदर अली साहब। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के मकाला निगार उर्दू अकाडमी के जनाब फिरदौसी साहब से गुजारिश है आप तशरीफ लाएं। जनाब अशरफ फिरदौसी साहब माइक पर। मैं लखनऊ की सरहद को गालबन दूसरी बार स्टेज पर आया हूँ। अशार को कह लेता हूँ, लेकिन बहरहाल आपकी कदमदाई है कि बुलाया आपने। चंद अशार। लम्हात मेरे तल्ख हक़ाइक़ से भरे हैं, लम्हात मेरे तल्ख हक़ाइक़ से भरे हैं, बरसात में जलते हुए घर मुझको मिले, बरसात में जलते हुए घर मुझको मिले हैं। दुनिया ने मेरे खून को सिंदूर समझकर, दुनिया ने मेरे खून को सिंदूर समझकर कशका की तरह अपनी जमीनों को मले। दुनिया ने मेरे खून को सिंदूर समझकर कशका की तरह अपनी जमीनों पे मले हैं। कातिल कहीं बाहर से नहीं आए चमन में, कातिल कहीं बाहर से नहीं आए चमन में, शाहीन मुझे अपने नशेमन में मिले हैं। अहले वफा, अहले वफा तुमसे कोई डर नहीं, लेकिन अहले वफा तुमसे कोई डर नहीं, लेकिन रहजन भी हमें खिज़र की सूरत में मिले हैं। वाकिफ वो नहीं है तो ज़माने को बता दो, वाकिफ वो नहीं है तो ज़माने को बता दो। हम हक के लिए दार पे 100 बार चढ़े हैं, हम हक के लिए दार पे 100 बार चढ़े हैं। फिरदौसी ना की खुश रहे फिरदौस में अपनी, गुलशन के तेरे फूल तो मुरझाए हुए हैं। एक कथा सुना देता हूँ। फटे में डांग अड़ाना ये कहावत है,
एक कहावत है, बुझे दियों को जलाना ये एक महारत है। फटे में टांग अड़ाना ये एक कहावत है, बुझे दियों को जलाना ये एक महारत है। जो खल्क़ आदत व अतवार पेश आ जाए, यही वो चीज़ है कहते जिसे करामत है। एक मुनाफिकों के शहर में क़याम करता हूँ, मुनाफिकों के शहर में क़याम करता हूँ, मुनाफिकों के शहर में क़याम करता हूँ। मैं वो हरीफ हूँ पहले सलाम करता हूँ, मैं वो हरीफ हूँ पहले सलाम करता हूँ। लड़ा लड़ा के पछाड़ा है सब खिलाड़ी को, लड़ा लड़ा के पछाड़ा है सब खिलाड़ी को। थका हुआ हूँ बहुत अब आराम करता हूँ। क्या पता, मैं अपने शेर में नुक्ता नया भी लाता हूँ, मैं अपने शेर में नुक्ता नया भी लाता हूँ। मैं रात दिन को और दिन रात को बताता हूँ, मैं रात दिन को और दिन रात को बताता हूँ। जो अहले हक हैं वो धब्बा हैं अहले दुनिया पर, जो अहले हक हैं वो धब्बा हैं अहले दुनिया पर। मैं किसको को अपना राहबर बनाता हूँ। जनाब फिरदौसी साहब ने सही फरमाया कि इस देश की आज़ादी हुई बहुत कुर्बानियों के बाद में मिली है, इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल है। हम हक के दीदार पे 100 बार चढ़े हैं, बेशक आपने सही फरमाया जनाब जिया तकवी साहब। वो सभी कशमकशे दर से उभर आए हैं जो हमें शहर खामोशा में नजर आए हैं। आपकी याद के आंसू है बेहती आंसू, आपकी याद के आंसू हैं बेहती मोती। मेरे किस्मत मेरे हिस्से ये उभर आए। रूह की प्यास बुझी दिल को सुकून मिलने लगा, रूह की प्यास बुझी दिल को सुकून मिलने लगा। मुझे ये भी मोहब्बत में नजर आए। खौफ खाते नहीं तूफान की बुगियानी, खौफ खाते नहीं तूफान की बुगियानी से, खौफ खाते नहीं तूफान की बुगियानी से। वो जो इस बहरे मोहब्बत में उतर आए हैं। क्या लोग खुश होते हैं, लोग खुश होकर चले आते हैं वापस, लेकिन लोग खुश होकर चले आते हैं वापस, लेकिन हम तेरे शहर से बालिंदा उतर आए हैं। उनके ही नक्शे कदम चूमे की बेशक दुनिया, उनके ही नक्शे कदम चूमे की बेशक दुनिया। अब की तारीफ में लहजे पे नजर आए, उनके ही नक्शे कदम चूमे की बेशक दुनिया। अब की तारीफ में लहजे पे नजर आए। अब वहाँ जाओ हशम है न हुकूमत का उरूज, अब वहाँ जाओ हशम है न हुकूमत का उरूज। हाथ कटवा के जहाँ अहले हुनर आए, अब वहाँ जाओ हशम है न हुकूमत का उरूज। हाथ कटवा के जहाँ अहले हुनर आए। पारसाई उन्हें सिला तौबा, पारसाई उन्हें देती है सिला तौबा। कजरवी छोड़ के जो सीधी डगर आए, दिल किया नजर तो फिर जान भी देना भी दिया, दिल किया नजर तो फिर जान भी देना भी दिया। आप क्यों छोड़ के माशूक का दर आए, दिल किया नजर तो फिर जान भी देना भी दिया। आप क्यों छोड़ के माशूक का दर आए। बेहतरीन, आप क्यों छोड़ के माशूक का दर आए हैं। मैं नौजवान शायर जनाब मसूद अहमद फहमी साहब से जनाब मसूद अहमद फहमी साहब। दोस्तों के साथ शादियों में जाना और ये कह के जाते हैं हम दावतों में दोस्तों से क्या कहते ये कह के जाते हैं हम
दावतों में दोस्तों से डिशों से बोटियां बस तुम निकालते रहना। ये कह के जाते हैं हम, दावतों में दोस्तों से डिशों से बोटियां बस तुम निकालते रहना, मैं तुमको मना करूं लाख, मानना ही नहीं, मेरी प्लेट में बिरयानी डालते रहना। ये कह के जाते हैं हम, दावतों में दोस्तों से डिशों से बोटियां बस तुम निकालते रहना, मैं तुमको मना करूं लाख, मानना ही नहीं, मेरी प्लेट में बिरयानी डालते रहना। बहुत शुक्रिया। और आज के कुछ शेर और सुनाऊंगा मैं कि वो जब मुझसे बोली, वो जब मुझसे बोली, वो जब मुझसे बोली, स्लोली स्लोली की डोली, स्लोली स्लोली, वो जब मुझसे बोली, स्लोली स्लोली की डोली, स्लोली स्लोली, अब हुआ पर्स खाली जो मेरा तो किसकी, हुआ पर्स खाली जो मेरा तो किसकी, हसीनों की टोली, स्लोली स्लोली, हसीनों की टोली, स्लोली स्लोली। और ये शेर तो बतौर खास कि गया सर से जिन आशिकी का पिता ने, गया सर से जिन आशिकी का पिता ने, कि जब बेड खोली, स्लोली स्लोली, कि जब बेड खोली, स्लोली स्लोली, गया सर से जिन आशिकी का पिता ने, कि जब बेड खोली, स्लोली स्लोली। और ये शेर देखिए कि सियासत में देखो चली आ रही है, सियासत में देखो चली आ रही है ये झूठों की टोली, स्लोली स्लोली, ये झूठों की टोली, स्लोली स्लोली। कुछ शेर तरन्नुम में, जैसे आपने कहा समाज में गजल में 2-3 शेर कि कह दो मेरी दुआ पे तुम आमीन कम से कम, कि कह दो मेरी दुआ पे तुम आमीन कम से कम, हो जाए मेरी शादियां 2-3 कम से कम, कि कह दो मेरी दुआ पे तुम आमीन कम से कम, हो जाए मेरी शादियां 2-3 कम से कम, है नाजिया से शिकवा न पारो से है गिला, है नाजिया से शिकवा न पारो से है गिला, धोखा न हमको देगी ये शाहीन कम से कम, धोखा न हमको देगी ये शाहीन कम से कम। ये विषय देखें कि हाँ चाहिए जहेज में घर और गाड़ियाँ, कि हाँ चाहिए जहेज में घर और गाड़ियाँ, दुल्हन भी देखने में हो नमकीन कम से कम, दुल्हन भी देखने में हो नमकीन कम से कम। कि अशार को सुनाने में आता है तब मजा, अशार को सुनाने में आता है तब मजा, कुछ मेरे सामने हो ख़वातीन कम से कम, कुछ मेरे सामने हो ख़वातीन कम से कम। बहुत शुक्रिया। ये उम्र का तकाजा है, माशाअल्लाह, और अच्छी बात है। दिस शोज़ कि आपके अंदर हार्मोन्स का सिक्रेशन अच्छी तरह से हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जनाब साबित लखनवी साहब, जनाब आज़म कुरैशी से दौली साहब, माइक उमर संदेली साहब, आप मकीने बारगाहे खालिक़े अर्ज़ो समा कहिए, मकीने बारगाहे खालिक़े अर्ज़ो समा कहिए, बजाए आपको गर्दीनते अर्शे उला कहिए, बजाए आपको गर्दीनते अर्शे उला कहिए, तकल्लुम आप फरमाए तो बरसे नूर के मोती, तकल्लुम आप फरमाए तो बरसे नूर के मोती, तबस्सुम बोली से हुस्ने लताफत की अदा कहिए, तबस्सुम बोली से हुस्ने
तैबा की बाहों में, वो शहर मुस्तफा है क्यों न फिर दारो शिफा कहिए, वो शहर मुस्तफा है क्यों न फिर दारो शिफा कहिए। न मन ही लाइक़े बूदम उमर नाते नबी गोयम, न मन ही लाइक़े बूदम उमर नाते नबी गोयम। ये फज़्ल ख़ास तौफ़ीक़ व अताए किबरिया कहिए, ये फज़्ल ख़ास तौफ़ीक़ व अताए किबरिया कहिए। न मन ही लाइक़े बूदम उमर नाते नबी गोयम, ये फज़्ल ख़ास तौफ़ीक़ व अताए किबरिया कहिए। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अब मैं साबित लखनवी साहब से मुक़दमी शुक्रिया फरमाई पर तशरीफ़ ले आए। जनाब साबित लखनवी साहब। सारे जहाँ का है हमारे सारे जहाँ का है, बदला हुआ जो रंग कहाँ का है, हमारे दर्द को बारिश के साथ साथ है आहे और सिसकियाँ, बारिश के साथ साथ है आहे और सिसकियाँ। बादल वही है रंग वही आसमां का है, बादल वही है रंग वही आसमां का है। पानी बदल गया तो फ़ज़ाएं बदल गई, माली बदल गया तो फ़ज़ाएं बदल गई, माली बदल गया तो फ़ज़ाएं बदल गई। माहौल बदला बदला माहौल बदला बदला मेरे गुलसिता का है, माहौल बदला बदला मेरे गुलसिता का है। माली बदल गया तो फ़ज़ाएं बदल गई, माहौल बदला बदला मेरे गुलसिता का है। क्या कहना बहुत सच्चा शेर कहा है, क्या बात है। मौसम बहार का गया खुशियों के साथ साथ, मौसम बहार का गया खुशियों के साथ साथ, मौसम बहार का गया खुशियों के साथ साथ। खतरा हर एक शख्स को फसले खज़ा से है, खतरा हर एक शख्स को फसले खज़ा से है। ऐसा नहीं कि सिर्फ है बदला हुआ लिबास, ऐसा नहीं कि सिर्फ है बदला हुआ लिबास, ऐसा नहीं कि सिर्फ है बदला हुआ लिबास। लहजा भी बदला बदला
तेरे हुक्मरां का है। बहुत फिर से पढ़ दीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ है बदला हुआ लिबास, लहजा भी बदला बदला तेरे हुक्मरां का है। लहजा भी बदला बदला तेरे हुक्मरां का है। घंटी बजी तो दिल की मेरी धड़कनें बढ़ी जी। घंटी बजी तो दिल की मेरी धड़कनें बढ़ी। घंटी बजी तो दिल की मेरी धड़कनें बढ़ी। आमद का ये तो वक्त मेरी जान जहाँ का है। आने का ये तो वक्त मेरी जान साबित तेरे कलाम को सुनते हैं गौर से। 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 अशरार में है दर्द जो दौड़े रवां का है। अशरार में जो दर्द है दौड़े रवां का है। बदला हुआ जो रंग फिर हिंदुस्तान का है। ऐसा नहीं कि सिर्फ है बदला हुआ लिबास, ऐसा नहीं है सिर्फ है बदला हुआ लिबास, लहजा भी बदला बदला तेरे हुक्मरान का है। ये थे जनाब तकरीम साहब। लोग आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब आज़म माजिद निसार आशरी साहब से जनाब माजिद निसार आशरी साहब। बहुत जल्दी जा रहे हैं। अरे उमर भाई, अरे 2-4 लोग बचे हैं। जी। अमीर शहर की दावत कबूल कर ली है। अमीर शहर की दावत कबूल कर ली है। सामने बैठ जाइए। फकीर दिल ने भी राहत कबूल कर ली है। थोड़ा हौसला अफजाई हो जाती है। फकीर दिल ने भी राहत कबूल कर ली है। और मेरी गरीब लिबासी पे तब हंसे जब मेरी गरीब लिबासी पे हंसे जब मेरी सुकून ने मसरत कबूल कर ली। मेरे सुकून ने मसरत कबूल कर ली है। वो अहले दिल हूँ कि अय्यार इस ज़माने के, वो अहले दिल हूँ कि अय्यार इस ज़माने के। सभी की हमने मोहब्बत कबूल कर ली है। सभी की हमने मोहब्बत कबूल कर ली है। वो अहले दिल हों कि यार इस ज़माने के, सभी की हमने मोहब्बत कबूल कर ली है। और जहाँ में झूठ की सच का लिबास बन बैठा, जहाँ में झूठ ही सच का लिबास बन बैठा, बशर बशर ने यहाँ आफत कबूल कर ली है। क्या बात है, क्या बात है। बशर बशर ने यहाँ आफत कबूल कर ली है।
क्या बात है। हम उसके हुक्म की ताईद लेके आए हैं। क्या हम उसके हुक्म की ताईद लेकर आए हैं। खुशी से हमने इबादत कबूल कर ली है। खुशी से हमने इबादत कबूल कर ली है। और हमें हयात में मुझको सुकून न क्यों मिलता। हमें हयात में मुझको सुकून न क्यों मिलता, जब अपने दिल ने इताअत कबूल कर ली है। जब अपने दिल ने इताअत कबूल कर ली है। और ज़माने वाले भी अब फूल बांटने आए। ज़माने वाले भी अब फूल बांटने आए। तभी के दिल ने शराफत कबूल कर ली है। तभी के दिल ने शराफत कबूल कर ली है। उसे दिखा ही नहीं कोई भी अपना यहाँ। उसे दिखा ही नहीं कोई भी अपना यहाँ। दिले निसार ने ये कलवत कबूल कर ली है। दिले निसार ने ये कुल्फत कबूल कर ली है। इशारा आपने सुना। खुशी से हमने इबादत कबूल कर ली है। सिलौरी से तशरीफ लाए जनाब आज़म कुरैशी साहब से मैं तशरीफ लाए। जनाब आज़म कुरैशी सिलौरी सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सईद अहमद तनवीर इजरा के लिए दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और सदर मोहतरम और आप सभी की इजाज़त चाहते हुए के हवाले से एक कथा समाप्त करें। अपने माँ बाप का तुम, अपने माँ बाप का तुम दिल न दुखाना यारों। अपने माँ बाप का तुम दिल न दुखाना यारों। तंग दस्ती में भी तुम साथ निभाना यारों। अपने माँ बाप का तुम दिल न दुखाना यारों। तंग दस्ती में भी तुम साथ निभाना यारों। हर बला से तुम्हें महफूज अगर रहना है। हर बला से तुम्हें महफूज अगर रहना है। तेज आवाज से ना उनको बुलाना यारों। तेज आवाज से ना उनको बुलाना यारों। आइए एक मतलब एक शेर हासिल करता हूँ, समाप्त करें। मिली ताकत तो नशे में तू क्या क्या बोल गया। मिली ताकत बोला हुआ ऐसा था नहीं पा रहा है। मिली ताकत तो नशे में तू क्या क्या बोल
अवतार समझता है तो ये सुन ले जरा, खुद को अवतार समझता है तो ये सुन ले जरा, हश्र नमरूद का फिरऔन का क्यों भूल गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हश्र नमरूद का फिरऔन का क्यों भूल गया। आइए एक मतलब एक शेर देख लें। खुशी है उनको यारों तो, खुशी है उनको यारों तो इसी गफलत में रहने दो। खुशी है उनको यारों तो इसी गफलत में रहने दो। मोहब्बत से हमें बस अब इसी जन्नत में रहने दो। मोहब्बत से हमें तो बस इसी जन्नत में रहने दो। जो डरते हैं हमारी देख कर तारीख जंगों की, जो डरते हैं हमारी देख कर तारीख जंगों की, उन्हें वहशत है तारी तो इसी दहशत में रहने दो। उन्हें वहशत है तारी तो इसी दहशत में रहने दो। एक उस हमारा क्या है लतीफ़ आई जो मैंने तैयार किया है तो आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। मैं आप सभी से बहुत सीनियर जूनियर हूँ तो आप सभी की रहनुमाई चाहूँगा। अगर कोई कमी रह जाए तो बताइएगा। मतलब हासिल करता हूँ। लतीफ़ नज़र रखी कि हमारा क्या है। आइए। जान है उसकी जहाँ उसका हमारा क्या है। जान है उसकी जहाँ उसका हमारा क्या है। सब है अल्लाह ताला का हमारा क्या है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। सब है अल्लाह ताला का हमारा क्या है। और उसकी तख्लीक से इंसान बने हम तो यहाँ, उसकी तख्लीक से इंसान बने हम तो यहाँ। मैंने सब उसका ही है जाना हमारा क्या है। मैंने सब उसका ही है जाना हमारा क्या है। और आधी ये फलक और ज़मीं दरिया पहाड़ हैं उसके। ये फलक और ज़मीं दरिया पहाड़ हैं उसके। कुल जहाँ उसने ही है बख्शा हमारा क्या है। कुल जहाँ उसने ही है बख्शा हमारा क्या है। और शेर देखेंगे। आधी दुनिया को फतह करके सिकंदर ने कहा, आधी दुनिया को फतह करके सिकंदर ने कहा, शानिए झूठी खुदा सच्चा हमारा क्या है। शानिए झूठी खुदा सच्चा हमारा क्या है। और शेर देखेंगे। वो खबर रखता है सीने में दबे राजों की, वो खबर रखता है सीने में दबे राजों की। उससे कुछ भी नहीं पोशीदा हमारा क्या है। उससे कुछ भी नहीं पोशीदा हमारा क्या है। और देखें शेर है कि मौत पे, जिस्म पे, राहत पे, परेशानी पे, मौत पे, जिस्म पे, राहत पे, परेशानी पे, तेरा हर चीज पे है कब्जा हमारा क्या है। तेरा हर चीज पे है कब्जा हमारा क्या है। और मक्ता समात कर ले इस तरह मोहब्बतों से कि वजह तख्लीक हैं वल्लाह नबी आज़म लिख। वजह तख्लीक हैं। बहुत खूबसूरत से है आप सभी की
वजह तख्लीक हैं, वल्लाह नबी आजम लिख, ये जहां उनका ही है सदका हमारा क्या है, ये जहां उनका ही है सदका हमारा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह जनाब आजम साहब, तेरा हर चीज़ पे है कब्जा, हमारा क्या है। कभी जब गर्दिशे हालात मुझको घेर लेते हैं, कभी जब गर्दिशे हालात मुझको घेर लेते हैं, तो मैं माजी की जानब मुस्कुरा कर देख लेता हूँ, तो मैं माजी की जानब मुस्कुरा कर देख लेता हूँ। इस शेर के खालिद जनाब आसिम मलियाबादी साहब से गुजारिश है कि मैं इस चश्मे से बहुत, इसने हमें बहुत डिस्टर्ब किया, अपना चश्मा भूलता है जल्दी में। अच्छा पढ़ा आपकी दुआ हैं आप जी। सर मोहतरम की इजाज़त से सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद सईद अहमद संजीवी साहब को, आपकी जो किताब है तो मतलब ये गज़ल मेरे ख्याल पढ़ी नहीं है, बहुत दिन से पढ़ी थी, पुरानी सामने आ गई। तो उसका मतलब यूँ अर्ज़ किया है कि आइनों से ये तेरी कैसी शनासाई है, आइनों से ये तेरी कैसी शनासाई है, जब भी देखा तेरी सूरत ही नजर आई है। आइनों से तेरी कैसी ये शनासाई है, जब भी देखा तेरी सूरत ही नजर आई है। रोशनी आई ताक़ुब में मेरे तब जाना, रोशनी आई ताक़ुब में मेरे तब जाना, मेरे पैकर से भी आगे मेरी परछाई है। रोशनी आई ताक़ुब में मेरे तब जाना, मेरे पैकर से भी आगे मेरी परछाई है। हम जहाँ गए थे वहाँ तक ना पहुँच पाए कभी, हम जहाँ गए थे वहाँ तक ना पहुँच पाए कभी, हम जहाँ गए थे वहाँ तक ना पहुँच पाए कभी, ऐसी जंजीर हमें वक्त ने पहनाई है। हम जहाँ गए थे वहाँ तक ना, हम जहाँ गए थे वहाँ तक ना पहुँच पाए कभी, ऐसी जंजीर हमें वक्त ने पहनाई है। शेर मुलाजा फरमाएं कि जिसकी आंखों में खटकता हूँ मैं तिनका बनकर, जिसकी आंखों में खटकता हूँ मैं तिनका बनकर, जिसकी आंखों में खटकता हूँ मैं तिनका बनकर, वो कोई गैर नहीं है, वो मेरा भाई है। जिसकी आंखों में खटकता हूँ मैं तिनका बनकर, वो कोई गैर नहीं है। जिसकी आंखों में खटकता हूँ मैं तिनका बनकर, वो कोई गैर नहीं है, वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। दरगुजर कीजिए इंसान है खता का पुतला, दरगुजर कीजिए इंसान है खता का पुतला, याद रखने को अगर कुछ है तो अच्छा ही है। दरगुजर कीजिए इंसान है खता का पुतला, याद रखने को अगर कुछ है तो अच्छा ही है। मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं कि गुजरी तमाम उम्र इसी पेचोताब में, गुजरी तमाम उम्र इसी पेचोताब में, दरिया में पाँव रखें या रखें शराब में, दरिया में पाँव रखें या रखें शराब में, गुजरी तमाम उम्र इसी पेचोताब में, दरिया में पाँव रखें या रखें शराब में। अक्सर मिला है सतह पर दरिया की मौजज़न, अक्सर मिला है सतह पे दरिया की मौजज़न, जुर्रत कहाँ से आई है अदना उबाब में। अक्सर मिला है सतह पे दरिया की मौजज़न, जुर्रत कहाँ से आई है अदना उबाब में। शेर मुलाहिज़ा फरमाया, मुझे बहुत पसंद है ये शेर, कि क्यों उंगलियों पर गिनते हो अपनी इबादतें,
क्यों उंगलियों पर गिनते हो अपनी इबादतें जब उसकी रहमतें ही नहीं हैं हिसाब में? क्यों उंगलियों पर गिनते हो अपनी इबादतें जब उसकी रहमतें ही नहीं हैं हिसाब में? कायल नहीं रहा मैं कभी इंतकाम का, कायल नहीं रहा मैं कभी इंतकाम का, वरना तमाम कर्ज हैं मेरे हिसाब में, वरना तमाम कर्ज हैं मेरे हिसाब में। और उसका जहमत तमाम की जो शुक्र नेमत परवरदिगार करते हैं, जो शुक्र नेमत परवरदिगार करते हैं, खिजा का जिक्र भी मिसले बहार करते हैं। जो शुक्र नेमत परवरदिगार करते हैं, जो शुक्र नेमत परवरदिगार करते हैं, खिजा का जिक्र भी मिसले बहार करते हैं। मैं जिसको फूल समझकर गले लगाता हूँ, मैं जिसको फूल समझकर गले लगाता हूँ, उसी के खार खबा तार तार करते हैं। मैं जिसको फूल समझकर गले लगाता हूँ, उसी के खार खबा तार तार करते हैं। हम आजमाते नहीं आजमाए लोगों को, हम आजमाते नहीं आजमाए लोगों को, हम एक गुनाह फकत एक बार करते हैं। हम आजमाते नहीं आजमाए लोगों को, हम एक गुनाह फकत एक बार करते हैं। खुदा हमारे अकीदे की लाज रख ले तू, खुदा हमारे अकीदे की लाज रख ले तू, बगैर देखे तेरा एतबार करते हैं। खुदा हमारे अकीदे की लाज रख ले तू, बगैर देखे तेरा एतबार करते हैं। ज़रा शेर मुलाज़ा फरमाएं, बहुत बतौर ख़ास ये भी हमारा बहुत पसंदीदा शेर है, इस गज़ल में आ गया, मुझे याद नहीं था कि ज़रा सी रेत थमा दो तुम उनकी मुट्ठी में, ज़रा सी रेत थमा दो तुम उनकी मुट्ठी में, जो ज़िंदगी पे बहुत एतबार करते हैं। ज़रा सी रेत थमा दो तुम उनकी मुट्ठी में, जो ज़िंदगी पर बहुत एतबार करते हैं। जब अपनी ज़ात के दरियाओं से गुजरना हो, जब अपनी ज़ात के दरियाओं से गुजरना हो, हम अपने आप को मुश्किल से पार करते हैं, हम अपने आप को मुश्किल से पास करते हैं। और मक्ता हाजिर है कि तबाहियों के हैं आसिम बहुत करीब वो लोग, तबाहियों के हैं आसिम बहुत करीब वो लोग, जो राह बुग़्ज़ व हसद इख्तियार करते हैं। तबाहियों के हैं आसिम बहुत करीब वो लोग, जो राह बुग़्ज़ व हसद इख्तियार करते हैं। बहुत शुक्रिया।